Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the new topic in Introduction to Embedded Systems course. Today we will heading towards the part 3 of other microcontrollers. Initially we start up with the introduction part of ATmega 328, its datasheet, its resources. Then we headed towards the analog and digital channels. We perform certain practicals on online simulator to see how it actually works. And today we will going to discuss the serial communication part of ATmega 328. As you all know that Arduino board has the stalled ATmega 328 controller. So we have already discussed the data sheet in detail, as you have done the assignment. So in that assignment, I have asked you that what protocols, serial communication protocols are available in Arduino. So you all have answered it, like it has I2C communication, it has USART, it has basically you can say it has SPI interface. So these are some serial communication protocols that resides inside the ATmega 328, and Arduino board supports these serial communication protocols. So we will today, the topic of our discussion is I2C communication. We will see that how I2C communication works. As we have already seen USART in 8051, we have seen it that how it works, how we can program it, and what are the mathematical calculations we need to perform before using that USART protocol. So here we will going to discuss that how I2C communication works, and how you will be going to program it. I2C communication, we will inshallah going to program it using Arduino, and you will going to see it that how we can make two Arduino boards communicate to each other by using I2C protocol. Okay, so let's go ahead. सबसे पहली चीज़ जो आप लोगों के जहन में आनी चाहिए वो ये है कि I2C में जो एक टू लिखा हुआ है इसकी पहचान ये है कि इट इज़ बेसिकली serial communication protocol which is basically having two wires. One is this wire, second is this wire. ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक master slave configuration होगी, which you can see very clearly in here that you have a master configuration, we have a slave configuration. टू वायर प्रोटोकॉल बहुत सी बेसिक बात ये बताता है कि इसमें सिर्फ टू वायर्स हैं, जिसमें से एक आपकी क्लॉक है, SCL इज सीरियल क्लॉक, और आपके पास एक SDA है, दैट इज सीरियल डेटा. ठीक है, तो आपके पास सिर्फ ये दो वायर्स इसमें एग्जिस्ट करती हैं जो कि तमाम डेटा सीरियली ट्रांसफ़र करती हैं. ठीक है, अब ये सब कुछ कैसे होता है, कितनी स्पीड से होता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, स्टेप्स क्या होंगे, प्रोटोकॉल फॉलो कैसे होगा, वी विल गोइंग टू सी टुडे इन टुडेज़ लेक्चर. ठीक है, the first thing that is very important is that I2C is a very much flexible protocol. It combines the best feature of SPI and UARTs. ठीक है, we will also going to discuss SPI later, but UART का हमें idea है, तो ये इन दोनों की best features को इसने combine किया है. With I2C you can connect multiple slaves to a single master. आप ये तो जैसे हम SPI में करते हैं कि मैंने आपसे कहा था एक master है, multiple slaves हैं, हम उसको आपस में connect कर सकते हैं, we can do that, but इन I2C कम्युनिकेशन यू कैन हैव मल्टीपल मास्टर्स एज वेल. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास जो I2C कम्युनिकेशन है उसके अंदर आपके पास मल्टीपल मास्टर्स का भी ऑप्शन है. ठीक है, SPI में यू हैव ऑलवेज अ सिंगल मास्टर, बट इन योर I2C कम्युनिकेशन वी हैव मल्टीपल मास्टर जो कि किसी एक स्लेव को चेक कर रहा होगा, या हो सकता है वो दूसरी स्लेव्स को जो है वो कंट्रोल कर रहा हो. ठीक है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे डिस्कस करने का वो ये है कि मिस ये स्लेव्स और मास्टर का कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज दिस इज़ द क्वेरी आई हैव आंसर्ड क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम. देखिए, स्लेव ये है आपके पास कि आप जो हैं वो किसी एक आपका कंट्रोलर है, आर्डिनो बोर्ड है, उससे आप किसी ब्लूटूथ मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं, उससे आप किसी LCD मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी वाईफाई मॉड्यूल को कंट्रोल कर रहे हैं. सो दीज आर बेसिकली स्लेव्स एंड योर कंट्रोलर इज़ योर मास्टर. ठीक है, तो बाज़ ऐसा भी हो सकता है कि आप ये चाह रहे हों कि आपका जो अगर सिंगल मास्टर है तो वो बहुत ही सिंपल है, आर्डिनो बोर्ड में कमांड दी और आपके LCD पे डाटा राइट हो गया, या आपके ब्लूटूथ मॉड्यूल से डाटा ट्रांसफ़र या रिसीव हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल. बट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ मल्टीपल मास्टर? मल्टीपल मास्टर्स का पर्पस ये होता है
ये लेट सपोज अगर दो मास्टर एक चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, एग्जाम्पल हम इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हमने एक एलसीडी बनाई है, एक एलईडी डिस्प्ले बनाया है, जिस पे हमने आपकी क्लास का एलईडी डिस्प्ले बनाया है, जिसमें मैं आपसे ये कहूँ कि आई हैव एन एक्सेस ओवर इट, ठीक है। तो मैं जो है वो क्लास को रखना चाहती हूँ, क्लास को डिले करना चाहती हूँ, या मैं आपकी क्लास रीस्केड्यूल करना चाहती हूँ, आई विल पुट माई रिमार्क्स ऑन दैट बोर्ड एंड आई कैन कंट्रोल इट, ठीक है, आई एम अ मास्टर। बट ऐसा भी हो सकता है कि एचओडी को भी उसका कंट्रोल हो। एचओडी अगर कोई अपने हिसाब से कोई लेक्चर का आप लोगों को उस पर डिस्प्ले करवाना चाहते हो कि उस वाले एलईडी मॉड्यूल के ऊपर कि आज आप लोगों का एक गेस्ट लेक्चर है वेयर यू हैव टू अपीयर फॉर अटेंडेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनके पास भी कंट्रोल है। एक कंट्रोल आपके डीन के पास है, एक कंट्रोल और किसी हायर अथॉरिटी के पास है। सो दिस मीन्स व्हाट, इसका मतलब ये मेरा मल्टीपल मास्टर्स हैं जो कि एक सिंगल स्लेव को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी सिनारियोज जहाँ पे आपके पास ऐसी सिनारियो आ जाए जहाँ पे आप ये चाह रहे हो कि एक ही मल्टीपल मास्टर्स हैं और स्लेव आपके पास एक ही, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, वहाँ एलईडी डिस्प्ले हमारे पास जो है वो इट्स सिंगल स्लेव, बट कंट्रोलर मैं भी हूँ, एचओडी भी हैं, डीन भी हैं, एंड देयर मैनी पीपल, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क इन द मल्टीपल मास्टर्स इन्वायरमेंट, राइट। सो I2C हैज़ बेसिकली टू वायर्स जस्ट लाइक यूआर्ट। यूआर्ट में आपने देखा था कि इट हैज़ अ TXD RXD लाइन, जिसमें वो हम इसमें ट्रांसमिट और रिसीव कर रहे होते थे। तो इसी तरह से I2C के अंदर भी टू वायर्स हैं, सीरियल डेटा का वायर है एंड यू हैव अ सीरियल क्लॉक, ठीक है। I2C सीरियल कम्युनिकेशन बेसिकली आपके पास जो है उसमें किस तरीके से काम होता है, नाउ वी विल गोइंग टू सी दैट। I2C इज़ अ सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, सो डेटा इज़ ट्रांसफर्ड बिट बाय बिट अलोंग अ सिंगल वायर। आपके पास जो सीरियल डेटा की लाइन है उस पर डेटा आपका बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होगा टूवर्ड्स योर जो भी आपका स्लेव है उसके पास। I2C इज सिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है? सिंक्रोनस का मतलब ये है कि आपकी कोई जो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा, वो किसी चीज़ से लिंक्ड है, वो किसी चीज़ से सिंक्रोनाइज्ड है। वो किस चीज़ से सिंक्रोनाइज्ड होगा? डेफिनेटली वो आपके क्लॉक के सिग्नल से सिंक्रोनाइज्ड होगा, ठीक है। तो क्लॉक हमेशा एक मास्टर और स्लेव के दरमियान सेटअप होगी और उसकी सिंक्रोनाइजेशन के ऊपर हम अपनी आउटपुट बिट्स को ट्रांसफ़र कर रहे होंगे। यानी कि आसान अल्फाजों में आप ये नोट डाउन कर रहे होंगे कि मैं क्लॉक को पॉजिटिव हाई पे भेज रहा हूँ या नेगेटिव हाई पे भेज रहा हूँ, या मैं उसको एक्टिव लो पे भेज रहा हूँ या एक्टिव हाई पे भेज रहा हूँ। सो यू नीड टू सी contrast it with reference to clock, ठीक है। एंड योर क्लॉक सिग्नल विल ऑलवेज बी कंट्रोल्ड बाय द मास्टर। हमेशा मास्टर के पास क्लॉक का कंट्रोल होगा। इट विल डिफाइन द क्लॉक कि कितनी तेज़ वो काम करेगी, कितनी वो स्लो काम करेगी। अगर हम इसकी समरी करें तो हमारे सामने ये आती है कि जो वायर्स जो हमने यूज़ की हैं I2C कम्युनिकेशन में, दे आर जस्ट टू, एज यू ऑल नो, SCL एंड SDA। मैक्सिमम स्पीड जो है वो इसमें ये वाले सारे मोड्स पॉसिबल हैं। 100 kbps भी है, 400 kbps है, एंड 5 mbps तक जाती है ये, ठीक है। सो दीज आर सम स्पीड्स अवेलेबल टू यू। सिंक्रोनस है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, इट्स अ सिंक्रोनस बिकॉज ये क्लॉक से सिंक्रोनाइज होती है। इज इट सीरियल और पैरेलल? ऑब्वियसली इट्स अ सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। मैक्सिमम नंबर ऑफ मास्टर्स की कोई लिमिट है नहीं, देर इज़ नो लिमिट, एंड बट स्लेव्स की लिमिट है, दैट इज़ 1008। इससे ज़्यादा स्लेव्स आप एक्सीड नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली द मैक्सिमम एंड लिमिट्स एंड द मिनिमम लिमिट्स ऑफ I2C कम्युनिकेशन। अब I2C कम्युनिकेशन में किस तरीके से डेटा, अब हम थोड़ी सी निटी ग्रिटी डिटेल्स में जाएंगे कि किस तरीके से डेटा जाता है, ट्रांसफ़र होता है, हाउ ऑल दीज थिंग्स हैपन। विथ I2C डेटा इज ट्रांसफर्ड इन मैसेजेस। ये बात आपने याद रखनी कि डेटा हमेशा एक मैसेज के चंक में ट्रांसफर होगा। दिस इज द ओवरऑल लेआउट ऑफ द मैसेज, ठीक है। इस तरह की फॉर्म में आपका डेटा ट्रांसफर होगा। मैसेजेस आर ब्रोकन अप इनटू फ्रेम्स ऑफ डेटा। आपका ये मैसेज में मल्टीपल फ्रेम्स ट्रांसफ़र होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका इकट्ठा ये पूरा का पूरा मैसेज चला जाएगा। ओवरऑल एक पूरी कम्युनिकेशन में ये पूरा मैसेज ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इसमें आपका देखिए स्टार्ट कंडीशन भी है, स्टॉप कंडीशन भी है, यानी कि आपने कम्युनिकेशन को यहाँ स्टार्ट किया से और यहाँ जाके आपने स्टॉप किया, बीच में आपने डेटा भेजा, एड्रेस भेजा, और भी बहुत सी चीज़ें भेजी जो भी हम देखेंगे। तो आपके पास एक कंप्लीट एक वन एंड टू एंड, अगर मैं बात करूं कि हमारे पास क्या ट्रांसफ़र होता है, तो दैट इज़ बेसिकली अ मैसेज इज ट्रांसफर्ड बिटवीन अ मास्टर एंड अ स्लेव, ठीक है। एंड दिस मैसेज इज कम्प्राइजेज ऑफ फ्रेम्स ऑफ डेटा। इसमें फ्रेम्स हैं, ठीक है। ईच मैसेज हैज़ एन एड्रेस फ्रेम। एक एड्रेस फ्रेम होगा इसके अंदर, दैट कंटेन्स द बाइनरी एड्रेस ऑफ द स्लेव, यानी जिस स्लेव से आप बात करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस होगा, दैट विल बी ईदर 7 बिट्स और 10 बिट्स, ठीक है। एंड वन और मोर डेटा फ्रेम्स। इसमें डेटा फ्रेम्स होंगे, एक या दो डेटा फ्रेम्स पॉसिबल हैं, दैट कंटेन द डेटा बीइंग ट्रांसमिटेड। द मैसेज ऑल्सो इंक्लूड्स स्टार्ट एंड स्टॉप कंडीशंस, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। रीड एंड राइट बिट्स के वेदर आपका कंट्रोलर लिखवाना चाह रहा है या इससे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है, रीड करना चाह रहा है।
वेदर ही वॉन्ट टू राइट समथिंग ऑन द स्लेव और वेदर ही वॉन्ट टू रीड फ्रॉम द स्लेव। तो आपके पास एक रीड एंड राइट बिट भी है। एंड वेदर द डेटा हैज़ बीन ट्रांसफर्ड और नॉट ट्रांसफर्ड, तो एक इसमें एक्नॉलेज और नॉन एक्नॉलेजमेंट की बिट्स भी बीच में मौजूद है। ठीक है, this is the whole idea between the transmission between your transmitter and your master and the slave। ठीक है, तो पहले अगर मास्टर बात करना चाह रहा है तो इट विल स्टार्ट द कम्युनिकेशन बाय यूजिंग दिस बिट। फिर वो एक एड्रेस भेजेगा। अब कुछ के जहन में सवाल आएगा कि मैं 7 भेजेगा कि 10 भेजेगा। देखिए, अगर आपके पास नंबर ऑफ स्लेव्स 1024 हैं, ठीक है, लेट्स सी, अगर हमारे पास नंबर ऑफ स्लेव्स 1024 लगे हुए 1024, 1024 का मतलब ये होगा दैट इज 2 raised to the power 10, ऐसा ही इज इक्वल टू 1024, ऐसा ही होता है। इसका मतलब है 10 बिट्स चाहिए उसके एड्रेस के लिए। ठीक है, स्लेव के एड्रेस के लिए 10 बिट्स चाहिए। देन यू विल बी यूजिंग दिस 10 बिट्स, राइट। अगर आपके स्लेव्स कम है, लेट्स सपोज विद इन द रेंज ऑफ 128 है, तो आप क्या करेंगे, 2 की पावर 7 इज़ 128, तो आप कहेंगे मैं 7 बिट्स का एड्रेस फ्रेम का यूज़ करूँगा, बिला वजह मैं 10 बिट्स नहीं इस्तेमाल करूँगा। ये बात पहले ही तय हो चुकी होगी बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर कि स्लेव्स कितने अटैच्ड हैं उस वाली पर्टिकुलर लाइन के ऊपर। ठीक है, वो तो उसको पता है, तो ऑटोमेटिकली वो एड्रेस फ्रेम उतने ही बिट्स का होगा। अगर आपके स्लेव्स ज़्यादा हैं तो 10 बिट्स का एड्रेस होगा, अगर स्लेव्स कम हैं तो 128 बिट्स का होगा। अब एक और सवाल आपके जहन में आ सकता है कि मिस आपने यहाँ 1024 आप स्लेव्स की बात कर रही हैं, बट पीछे आपने कहा कि मैक्सिमम पॉसिबल जो है वो 1008 स्लेव्स पॉसिबल हैं। देखिए, मैंने आपसे ये बात इसलिए डिस्कस की बिकॉज आपके पास, हमें ये पता है कि एक आइडियल सिनारियो होता है दैट इज़ 1024, और एक प्रैक्टिकल सिनारियो कि कितना सपोर्ट कर सकता है ये विदाउट ड्रॉपिंग द वोल्टेजेस, विदाउट एडिंग अ लॉट ऑफ नॉइज इन द सर्किट। यानी कि आप जो है वो अटैच तो आपने बहुत लोगों को कर दिया, बट आप जो बात करते हैं तो उसमें नॉइज़ बहुत ज़्यादा ऐड हो रही है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो दैट इज़ जो है उसको हमने 1008 की तरफ रेफ़र किया है कि इतने स्लेव्स जो हैं वो अच्छी तरीके से बातचीत कर सकते हैं, और मैक्सिमम पॉसिबल दिस इज़ पॉसिबल, दिस वैल्यू इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब वो एड्रेस भेजेगा तो उसको चेक करना होगा कि किस स्लेव ने मुझे रिस्पॉन्स किया है। तो एक एक्नॉलेजमेंट आएगी दैट इज़ हेयर, राइट। जैसे मैं अगर क्लास में 15 बच्चे बैठे हुए, मैं किसी एक का नाम लूँगी तो वो डेफिनेटली मेरी तरफ देख के नोट करेगा, वो ऊपर नीचे करेगा, देखेगा, उसकी आईज रोल होंगी, दैट मीन्स आई हैव गॉट सम एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम दैट पर्सन। बाकी लोग नॉर्मल बैठे हुए होंगे बिकॉज उनका नाम कॉल नहीं हुआ। सिमिलरली जब मैं उसको डेटा भेजूंगी तो वो तब भी कोई मुझे एक सिग्नल देगा कि यस मुझे मिस रिसीव हो गया है, और जिनको नहीं रिसीव हुआ होगा वो कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं देंगे। एंड सेम हेयर, ठीक है। तो ये कंप्लीट मैसेज फ्रेम्स में डिवाइडेड होगा, बिट बाय बिट ट्रांसफ़र होगा, और ये स्टार्ट पहले कंडीशन जाती है, देन यू हैव एन एड्रेस फ्रेम, देन यू हैव अ रीड और राइट के माइक्रो कंट्रोलर ने आपने लिखवाना चाहता है या रीड करना चाहता है। देन यू हैव द एक्नॉलेजमेंट कि वो उसको मेरी बातें मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी डेटा भेजूंगा, इज़ ही एबल टू अंडरस्टैंड मी, इज़ ही एबल टू लिसन टू मी। Then it will send the data frames and again check whether it has received or transmitted the frame or not. Again transfer the second frame, again wait for the acknowledgement, and then it waits for the stop condition. Finally जो है वो stop condition एक जाएगी जो कि ये indicate करेगी that the transmission has been ended। ठीक है। सो अब स्टार्ट कंडीशन किस तरीके से होती है, द एस डी ए लाइन यानी कि डेटा लाइन स्विचेस फ्रॉम अ हाई वोल्टेज लेवल टू अ लो वोल्टेज लेवल बिफोर द एस सी एल लाइन स्विचेस फ्रॉम हाई टू लो। आपकी क्लॉक हाई से लो होने से पहले पहले आपकी एस डी ए लाइन को हाई से लो होना होता है। ये सिग्नल जब कंट्रोलर करेगा तो इसका मतलब क्या है कि अब कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट होने जा रही है। नाउ देर इज़ सम ट्रांसमिशन दैट विल बी गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है, यानी आपका जो डेटा लाइन है वो हाई से लो होगी, ऊपर जाते हुए नीचे जाएगी, इससे पहले पहले कि क्लॉक नीचे चली जाए। ठीक है। स्टॉप कंडीशन क्या होती है, द एस डी एल लाइन स्विचेस फ्रॉम अ लो वोल्टेज लेवल टू अ हाई वोल्टेज लेवल, ये इसका इन्वर्टेड है। आफ्टर द एस सी एल लाइन स्विचेस फ्रॉम लो टू हाई, एस सी एल के लो से हाई जाने से के बाद आपने जो है एस डी एल लाइन को लो से हाई में कन्वर्ट करना है। दिस इज आफ्टर, दिस इज बिफोर। ठीक है। Address frame is a 7 to 10 bit sequence unique to each slave that identifies the slave when the master wants to talk to it। जैसे कि मैंने आपको बताया है, read and write bit क्या है, single bit specifying whether the master is sending data to the slave, that means a low voltage level, और requesting a data from it, that is a high voltage level। जब आप इसको high set करेंगे, मास्टर ने उसको high रखा है, इसका मतलब है कि slave ने कुछ भेजना है। जब मास्टर ने इसको low कर दिया, इसका मतलब मास्टर slave से बात करना चाह रहा है। ठीक है।
we have a ACK and negative acknowledgement bit. Each frame in a message is followed by an acknowledgement or a non acknowledgement bit. ठीक है, हर फ्रेम के बाद ये चीज़ जाएगी. If an address frame or data frame was successfully received, an acknowledgement bit is returned to the sender from the receiving device. ठीक है, आपने देखा था, मैंने आपको दिखाया था कि we have 3 ACK/NACK bits in the message. एक एड्रेस फ्रेम की बात थी, एड्रेस फ्रेम रीड राइट की बात थी, एक डेटा फ्रेम की बात थी और एक दूसरे डेटा फ्रेम की बात थी. तो जब कभी भी आप कोई एक फ्रेम ट्रांसफ़र करेंगे, उस फ्रेम के रिस्पॉन्स में जो भी रिसीवर है, जो भी आपका स्लेव है, उसको ये बात मेंशन करनी है कि भाई मुझे आपका डेटा मिल गया है. वो कहाँ मेंशन करेगा? वो आपकी एसी की बिट को जो है के अंदर मेंशन करेगा, उसको हाई या लो करके कि यार मुझे आपका मैसेज मिल चुका है. ठीक है, इस पूरे स्टेप्स को हम डिटेल में आगे भी देखेंगे. राइट नाउ वी जस्ट सीइंग कि ये होता क्या है. तो आपने ये स्टार्ट कंडीशन देख ली है कि इट्स अ हाई वोल्टेज लेवल से हम लो वोल्टेज लेवल में जाएंगे बिफोर कि आपकी क्लॉक जो है वो हाई से लो हो, और स्टॉप कंडीशन में क्लॉक के बाद आपने अपनी एसडीए लाइन को लो से हाई करना है. ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो वेरी ईजी हो, तो बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही हैं. एड्रेसिंग की अगर हम बात करते हैं तो I2C डज नॉट हैव अ सेफ सेलेक्ट लाइंस लाइक SPI. जैसे कि मैंने आपको एक पहले SPI में एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास उसमें अगर 4 स्लेव्स लगे हुए हैं तो वी हैव 2 सेलेक्ट लाइंस. जिससे 0 से एक स्लेव सेलेक्ट होगा, 0 1 से दूसरा होगा, 1 0 से तीसरा होगा, 1 1 से चौथा होगा. और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार मैं 8 स्लेव्स कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आपको एक और स्लेव सेलेक्ट की लाइन अटैच करनी पड़ेगी, उसका हार्डवेयर काम करना पड़ेगा. I2C में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यू कैन से देयर आर नो सेफ सेलेक्ट लाइन्स. तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको हार्डवेयर से प्ले करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, so it needs another way to let the slave know that the data is being sent to it and not another slave. अब सेफ सेलेक्ट से तो ये था कि हम जिससे भी बात कर रहे थे उसका हमने नाम कॉल किया एंड वी जस्ट मेक दैट लाइन लो. देखिए SPI में इसको ज़रा डिटेल में मैं कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए. SPI में क्या हो रहा था? दिस इज़ योर SPI. आपका स्लेव 1 जो है वो ये है, स्लेव 2 ये है, स्लेव 3 ये है, स्लेव 4 ये है. इसने अगर इससे बात करनी है वो इसके सिग्नल को लो कर रहा था, बाकी सबको इसने सिग्नल को क्या किया? हाई. इधर भी हाई, इधर भी हाई. और ये कौन सी लाइन थी? ये स्लेव सेलेक्ट की लाइन थी SS. और आपको याद होगा इस पर एक बार होता है, दैट मीन इट्स एन एक्टिव लो पिन. जिससे भी बात करनी है उसको लो कर दिया, तो उसको पता चल गया कि भाई मेरे पास डेटा आ रहा है और मुझे अब मैंने भेजना है या कुछ रिसीव करना है. ठीक है, लेकिन आपकी I2C कम्युनिकेशन में ये वाली लाइन ही नहीं है. देयर वी हैव ओनली क्लॉक एंड वी हैव ओनली डेटा लाइन. ये दो चीज़ें हमारे पास, और हमारे पास कुछ भी नहीं है. तो इस सिनारियो में आपको इधर तो डेटा भेजोगे, इधर क्लॉक भेजोगे, पूरा मैसेज इस वाली लाइन पे जाएगा. हमें कैसे पता कि हम किस स्लेव से बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है एड्रेसिंग का. दिस कॉन्सेप्ट कम हियर, एड्रेसिंग. अब एड्रेसिंग ये क्या करता है? एड्रेसिंग आपके पास एड्रेस फ्रेम जो है, सबसे पहले हम फर्स्ट फ्रेम है एड्रेसिंग के अंदर, फर्स्ट फ्रेम आपका एड्रेस फ्रेम होता है बिफोर आफ्टर योर स्टार्ट बिट इन अ न्यू मैसेज. आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप एड्रेस फ्रेम को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जिस स्लेव से बात करनी है उसको ये बात पता चल जाए कि मेरे से मुखातिब किया जा रहा है. ठीक है, मुझसे बात की जा रही है. तो इसलिए आपको सबसे पहला काम क्या है कि आपने एड्रेस भेजना है. ठीक है, यू फर्स्ट हैव टू ट्रांसफ़र द एड्रेस. ऑब्वियसली हमेशा कम्युनिकेशन का स्टार्ट कंडीशन से होगा कि आपने अपनी स्टार्ट बिट को भेजनी है, जो कि मैंने आपको अभी बताई है कि आप उसको हाई से लो करेंगे बिफोर मेकिंग योर क्लॉक हाई टू लो. उससे पहले आपने SDA लाइन को हाई से लो करना होगा. उस कंडीशन के बाद जो सबसे पहली चीज़ स्लेव तक जाएगी दैट विल बी योर एड्रेस फ्रेम. ठीक है, इसमें क्या होगा? द मास्टर सेंड्स द एड्रेस ऑफ द स्लेव इट वांट्स टू कम्युनिकेट विथ टू एवरी स्लेव कनेक्टेड टू इट. जितने भी स्लेव्स कनेक्टेड हैं सबके पास वो एड्रेस फ्रेम जाएगा. हर स्लेव वो अपना एड्रेस कंपेयर करेगा अपने एड्रेस से कि यार मेरा एड्रेस मैच हो रहा है, नहीं हो रहा. दूसरा स्लेव करेगा मेरा हो रहा है, नहीं हो रहा. तीसरा करेगा, चौथा, सब अपना अपना करेंगे. जिसका भी एड्रेस मैच होगा वो. अब नेक्स्ट क्या काम था? मैंने आपको बताया था कि हर फ्रेम के बाद एक एक्नॉलेजमेंट बिट होती है. तो वो क्या करेगा? नेक्स्ट फ्रेम भेजने से पहले वो अपनी लो वोल्टेज भेजेगा एक्नॉलेजमेंट बिट के अंदर. जो AC के बिट है आपकी एक्नॉलेजमेंट बिट, उसमें वो एक लो वोल्टेज सेंड करेगा टू द मास्टर. ठीक है, तो मास्टर को पता चल जाएगा कि यार मेरे जो जिस स्लेव से मैं बात करना चाह रहा था उसको मेरी बात समझ में आ गई है, वो मुझसे कनेक्ट हो चुका है. ठीक है, और अगर आपके पास स्लेव का एड्रेस मैच नहीं होता तो स्लेव कोई एक्नॉलेजमेंट बिट में कुछ भी नहीं भेजेगा और आप नॉर्मल जैसे चल रहे थे वैसे ही चलता रहेंगे. एक बात याद रखिएगा, एड्रेस फ्रेम हो
एक्नॉलेजमेंट बिट हो, स्टार्ट कंडीशन हो, स्टॉप कंडीशन हो, सब कुछ इस डेटा वाली लाइन पे जाएगी, ठीक है, SDA वाली लाइन पे जाती है. The master sends the address of the slave it wants to communicate with to every slave connected to it. Each slave then compares the address sent from the master to its own address. वो अपने एड्रेस से कंपेयर करेगा. If the address matches, it sends a low voltage ACK bit. Acknowledgement bit वो जो है low voltage यानी कि 0 सेंड करेगा back to the master. If the address does not match, the slave does nothing and the SDA line remains high. यानी कि अब SDA straight रहेगी, उसको कुछ नहीं करना. लेकिन अगर उसका एड्रेस मैच होगा तो वो एक्नॉलेजमेंट बिट को शो करने के लिए वो SDA लाइन को लो कर देगी, ठीक है. Then we have a read and write bit. The address frame includes a single bit at the end that informs the slave whether the master wants to write data or to receive data. एड्रेस फ्रेम के आखिर में एक जो है आपकी बिट है रीड एंड राइट की, जो कि स्लेव को ये बताती है कि यार तुमसे मैं डाटा लेना चाहता हूँ या देना चाहता हूँ. इफ़ द मास्टर वॉन्ट्स टू सेंड डाटा टू द स्लेव, अगर मास्टर ये चाहता है कि उसने डाटा सेंड करना है स्लेव को, द रीड राइट बिट इज़ अ लो वोल्टेज लेवल, वो उसको लो रखेगा. और अगर मास्टर ये चाहता है कि वो स्लेव को से डाटा रिक्वेस्ट करे तो वो उसको हाई रखेगा, ठीक है. अगर डाटा लेना चाहता है तो वो बिट हाई होगी, यानी कि लॉजिकल 1 वहाँ रिटर्न होगा. और अगर वो डाटा देना चाहता है स्लेव को तो वो 0 होगा, इसका मतलब है लॉजिकल लो होगा. आफ्टर द मास्टर डिटेक्ट्स द ACK बिट फ्रॉम द स्लेव, जब मास्टर को ये रियलाइज हो गया कि वो वाला स्लेव मुझसे कनेक्टेड है, तो अब पहला डाटा फ्रेम जो है वो सेंड किया जाएगा आपके स्लेव को. द डेटा फ्रेम इज ऑलवेज 8 बिट लॉन्ग, ये बात आपने याद रखनी है. एंड सेंट विद द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फर्स्ट, जो सबसे MSB बिट होगी, जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, वो आप पहले भेजेंगे. और आपका जो डेटा फ्रेम है वो सिर्फ कितना होगा, 8 बिट्स लॉन्ग होगा. ईच अगेन वही सेम कहानी है कि डेटा फ्रेम जो है वो उसके फ़ौरन बाद आपकी ACK बिट और एक्नॉलेजमेंट और नॉन एक्नॉलेजमेंट बिट सेंड की जाएगी, ताकि ये बात पता चल जाए कि क्या उसने सही डाटा रिसीव कर लिया है कि नहीं रिसीव किया. अगर आपके स्लेव ने जो है वो डाटा रिसीव कर लिया है, दोबारा से वो एक लॉजिकल लो भेजेगा एक्नॉलेजमेंट बिट में कि मुझे रिसीव हो गया है. और अगर उसको वो नहीं मिलता तो डाटा रिपीटली दोबारा सेंड होगा. To verify that the frame has been received successfully, the ACK bit must be received by either the master or the slave depending कौन data send कर रहा है before the next data frame can be sent. तो हर डेटा फ्रेम के बाद यही ACK और NACK की बिट सेंड की जाएगी, जहाँ पे अगर वो रिसीव हो गई होगी उसकी एक्नॉलेजमेंट करने के लिए वो SDA लाइन को लो करेगा कि यार मुझे तुम्हारा डाटा कम्प्लीटली मिल गया है. तो अब तक हमने क्या पूरी कहानी की है, अब तक हमने ये कहानी की है, सबसे पहले आपने बातचीत करने के लिए अपनी SDA लाइन को लो से हाई किया, ठीक है, बिफोर द क्लॉक गोज फ्रॉम लो टू हाई. उससे पहले आपने आपने SDA लाइन को अपनी हाई से लो किया बिफोर योर क्लॉक गोज फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है. ये करने के बाद आपने नेक्स्ट काम क्या किया, आपने नेक्स्ट काम ये किया कि आपने एड्रेस फ्रेम भेजा और उसके साथ एक रीड और राइट की बिट भी थी, ठीक है. एड्रेस फ्रेम मिलते साथ ही सारे स्लेव्स अपना एड्रेस चेक करते रहेंगे, और जिसमें एड्रेस की जो आपकी जो भी आप उसका एड्रेस होगा वो अपने आप से चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि भाई मेरा जो है वो एड्रेस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा. जिससे भी एड्रेस मैच हो जाएगा वो एक्नॉलेजमेंट बिट करे भेजेगा बैक टू द मास्टर बाय कीपिंग दैट योर SDA लाइन लो. SDA लाइन को वो लो करेगा ताकि एक्नॉलेजमेंट बिट चली जाएगी कि भाई मुझे रिसीव हो गया. जब वो रिसीव हो जाएगा तो उसके बाद वो रीड एंड राइट बिट चेक करेगा कि यार मैं जो है वो मुझसे मांगा जा रहा है कि मुझसे कहा जा रहा है. अगर मास्टर रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि स्लेव डाटा भेजे तो वो हाई भेजेगा रीड एंड राइट में. अगर मास्टर खुद दे रहा होगा स्लेव को तो वो रीड एंड राइट में लो भेजेगा, यानी कि लेवल 0 भेजेगा, ठीक है. उसके बाद वो डेटा फ्रेम भेजेगा. डेटा फ्रेम में अगेन मास्टर जो है वो डेटा फ्रेम जैसे ही भेजेगा उसके बाद एक NACK की बिट होगी या ACK की बिट होगी. जैसे ही स्लेव को डाटा रिसीव हो जाएगा वो उस बिट को लो करेगा और आपको रिटर्न बैक कर देगा. और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें आपकी हमेशा डेटा फ्रेम का साइज 8 बिट होगा और सबसे MSB बिट जो है वो सबसे पहले भेजी जाएगी, ठीक है. After all of the data frames have been sent, the master can send a stop condition to the slave. क्या वो stop condition भेजेगा. stop condition क्या है? The stop condition is the voltage transition from low to high on the SDA line after the low to high transition on the SDA line with the SDA line remaining high. यानी कि जब आपकी अब आपने जब स्टॉप कंडीशन भेज दी, सारे डाटा फ्रेम्स आपने भेज दिए, आपकी कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गई है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी SDO लाइन को लो से हाई करेंगे. कब करेंगे, जब आपकी क्लॉक लो से हाई हो चुकी होगी और हाई ही कंडीशन में रहेगी, यानी कि क्लॉक आपकी हाई कंडीशन में रहेगी, लो से हाई रहेगी, और उसके बाद आपने SDO लाइन को लो से हाई करना है. दिस इंडिकेट्स कि अब आपका डेटा की ट्रांसमिशन हो चुकी है, ठीक है. अब हम ये स्टेप्स पिक्टोरियल व्यू में 1 बाय 1 दोबारा से एक दफ़ा देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो.
सबसे पहले द मास्टर सेंड्स द स्टार्ट कंडीशन. स्टार्ट कंडीशन क्या थी कि हाई से लो भेजना है बिफोर योर क्लॉक गोज हाई टू लो. यही थी, हमने यही पढ़ी थी अभी कि स्टार्ट, अभी हम ट्रांसमिशन स्टार्ट कर रहे हैं. स्टार्ट का तरीका क्या था कि एसडीए को हाई से लो करना है बिफोर योर क्लॉक गोज हाई टू लो. तो ये हमने सबसे पहले स्टार्ट कंडीशन भेज दी. ठीक है. देन नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हम भेजते हैं एड्रेस. एड्रेस फ्रेम में क्या है, आप ये देखिए, आपके मास्टर ने ये ऊपर से ये एड्रेस भेजा, जिसके बाद एक रीड एंड राइट बिट भी है. राइट. मैंने आपसे ये बात भी कही थी कि सबसे पहले जो आ रही होती है वो क्या आ रहा होता है, वो आपका MSB बिट आ रही होती है. सो अगर हम यहाँ से देखें, सो अगर हम सबसे पहले नोट डाउन करें तो दिस बिट गोस एट द फर्स्ट, दिस बिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ. तो ये कौन सी होगी, ये आपकी MSB बिट होगी. तो MSB बिट क्या है आपके पास, 0 1 0 1 1 0 1. ये किससे मैच कर रहा है, ये इस एड्रेस से मैच कर रहा है. दिस इज द MSB. पहले क्या बिट भेजी, MSB. इसकी MSB क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है, 0. इसने क्या भेजा पहले, 0. ठीक है. सो इसका मतलब है हमारे पास 0 है, अगली बिट 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1, आगे 0 है, फिर इसकी भी 0 है. देन देयर आर 2 1s, we have here 2 1s, then we have 0 and 1, then we have 0 and 1, और आखिर में हमने रीड एंड राइट बिट भेजी. ठीक है. तो ये जो एड्रेस है ये सबके पास गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया. इसने अपना एड्रेस कंपेयर किया, इसने अपना एड्रेस कंपेयर किया, इसने अपना एड्रेस कंपेयर किया. मैच किसका हुआ, इसका मैच नहीं हुआ, इसका भी मैच नहीं हुआ, इसका मैच हो गया. इसका मतलब है इस स्लेव नंबर 3 से बात हो रही है. ठीक है. साथ साथ रीड एंड राइट लाइन क्या है, वो लो है. इसका मतलब है कि मास्टर डेटा ट्रांसफर कर रहा है स्लेव को. ठीक है. आगे देखते हैं. अब क्योंकि इसका मैच नहीं हुआ, इसका मैच नहीं हुआ और इसका मैच हो गया, तो इसने इसको रिवर्स, अब आप इसकी डायरेक्शन देखिए. अब ये मास्टर को एसडीए भेज रहे हैं. पहले आपके पास एरोज यूं जा रहे थे टूवर्ड्स, वेट अ सेकेंड, पहले एरोज आपके यूं जा रहे थे. अब आप नोट करें एरोज आपके इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. अब ये सब रिस्पॉन्स कर रहे हैं मास्टर को कि भाई ये कह रहा है मैं तो हाई हूँ, मुझे तो कुछ नहीं मिला, ये भी कह रहा है मैं हाई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं मिला. इसने क्या किया, एक्नॉलेजमेंट बिट भेजी बाय कीपिंग द एसडीए लेवल लो. 1 सेकंड के लिए, मतलब एक क्लॉक की साइकिल के लिए इसने उसको लो करके हाई किया, हाफ अ साइकिल के लिए लो किया और हाई किया. इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आपको एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं आपका स्लेव हूँ. दिस थिंग्स इंडिकेट, दिस जो लो हुआ है, दिस इज द एक्नॉलेजमेंट बिट. ठीक है. दिस लो इज बेसिकली योर एक्नॉलेजमेंट बिट कि आपके पास आई एम योर स्लेव, आई एम, इन्होंने कोई लो नहीं किया, आई एम नॉट योर स्लेव, आई एम नॉट योर स्लेव. ठीक है. देन आपने जब देखा कि मास्टर उसकी तरफ से उसको आ चुकी है, अब मास्टर क्या भेजेगा, स्टार्ट कंडीशन भी हो गई, एड्रेस फ्रेम भी हो गया, रीड राइट भी हो गया, एक्नॉलेजमेंट भी आ गई. नाउ इट विल सेंड द डेटा. ये इसने अपना डेटा भेजा, जो भी इसने XYZ 0 0 1 0 1 1 0 1 जो भी डेटा भेजना था, वो ये आपके सामने 0 0 1 0 1 1 0 इसने इसको भेजा. अब बाकी लाइंस ने इसको इग्नोर किया बिकॉज दे आर नॉट बीइंग कॉल्ड. ठीक है. तो ये लोग अब रिसीव, ये वाला स्लेव आपका रिसीव कर रहा है डेटा फ्रेम. अब जब इसने डाटा रिसीव कर लिया, तो अब नेक्स्ट काम क्या होगा, मैंने आपसे कहा जब भी कोई फ्रेम भेजा जाएगा तो उसके बाद एक अदद एक्नॉलेजमेंट जाएगी. अगेन ये वाला फ्रेम कहेगा कि यार मुझे आपका डाटा मिल गया है. इट विल अगेन मेक दिस हाई बिट इनटू एसडीए फ्रॉम हाई टू लो. दिस इज एन एक्नॉलेजमेंट. जो वो क्या करता है, लो वोल्टेज लेवल भेजता है, यानी कि 0 भेजता है टूवर्ड्स द मास्टर कि यार मुझे आपका डाटा मिल चुका है. ठीक है. देन अब क्योंकि डेटा ट्रांसफर हो गया है, दूसरा फ्रेम भी हो गया, ऐसे ही तीसरा फ्रेम भी, चौथा फ्रेम भी, सारे फ्रेम्स हो गए. अब स्टॉप करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि स्टॉप करने के लिए हम एसडीए लाइन को लो से हाई करेंगे. ये एसडीए लाइन लो थी पहले, हमने इसको हाई किया, लेकिन कब, आफ्टर योर क्लॉक हैज़ बिकम्स लो टू हाई. आपकी क्लॉक की लो से हाई होने के बाद, और वो हाई ही रहेगी. देखिए ये क्लॉक इससे पहले ही लो से हाई हो चुकी है और अब हाई ही रह रही है, और हमने इसके बाद लो से हाई किया है. दिस इंडिकेट्स कि आपकी जो है अब वो ट्रांसमिशन स्टॉप हो चुकी है. स्टार्ट करते वक्त हमने एसडीए लाइन को हाई से लो किया क्लॉक से पहले. अब हम इसको स्टॉप कंडीशन में इसको लो से हाई कर रहे हैं क्लॉक के बाद. ठीक है. दिस इंडिकेट्स कि आपका डेटा रिसीव हो चुका है और नाउ द ट्रांसमिशन और कम्युनिकेशन हैज़ बीन स्टॉप्ड. अब सिंगल मास्टर के अंदर जब मल्टीपल स्लेव्स हैं तो हमने क्या देखा कि बिकॉज I2C यूजेस एड्रेसिंग, मल्टीपल स्लेव्स कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम अ सिंगल मास्टर. वी ऑब्वियसली नो दैट. विद अ 7-bit एड्रेस हमारे पास 128 यूनिक एड्रेस पॉसिबल हैं. विद अ 10-bit एड्रेस हमें पता है कि 7 और 10 पॉसिबल है एड्रेस फ्रेम.
हमारे पास 1024 यूनिक एड्रेसेस पॉसिबल हैं, एज दिस इज़ वेरी अनकॉमन बिकॉज लॉसेस की वजह से। टू कनेक्ट मल्टीपल स्लेव्स टू अ सिंगल मास्टर, वायर देम लाइक दिस, जैसा आपको पिक्चर में शो किया गया है, विद अ 4.7 किलो ओम्स रजिस्टर पुल अप कनेक्टिंग द एसडीए लाइंस टू वीसीसी। इन्होंने पुल अप कंडीशंस में किया हुआ कि जब तक कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पे वीसीसी पुल अप हुआ होगा रजिस्टर के थ्रू, जो आपको पता है कि पुल अप कर देते हैं ताकि हमारे पास जो है वो फॉल्स जो है वो चीज़ें ना आएँ, ठीक है। और इम्पीडेंस मैचिंग के लिए भी ये वाला काम इस्तेमाल होता है, ठीक है। सो दिस इज़ वी हैव डन कि हमने जो है इसको एस डी और एस सी एल लाइन्स को इस तरीके से हम इसका कनेक्शन करेंगे अगर आपके पास सिंगल मास्टर है और मल्टीपल स्लेव। अगर हमारे पास मल्टीपल मास्टर्स विथ मल्टीपल स्लेव्स हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आपके पास अब मसला यहाँ पे ये आ जाता है कि आप जब दो मास्टर्स आ गए तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि दोनों मास्टर्स एक ही वक्त में बात करना चाह रहे हो स्लेव से, तो इस केस में आपस में कंटेंशन होगा। कंटेंशन का मतलब कि आपस में लड़ाई होगी कि भाई पहले कौन सा बात करेगा। तो जब भी कभी किसी मास्टर को बात करनी होगी तो सबसे पहले वो एस डी ए लाइन को देखेगा। अगर आपकी एस डी ए लाइन जो है वो लो है, इसका मतलब है कि कोई और मास्टर है जो कि बात कर रहा है और मुझे अभी वेट करना है, आई हैव टू वेट बिकॉज समबडी एल्स इज टॉकिंग ऑन दैट लाइन, ठीक है। अगर एस डी ए लाइन हाई है इसका मतलब है आई एम फ्री, मैं ट्रांसमिट कर सकता हूँ मैसेज, ठीक है। तो आपने ये बात अपने जहन में रखनी है। अगर मल्टीपल मास्टर्स का केस होता है तो हम एस डी ए लाइन को देखते हैं, इफ़ इट इज़ हाई वी कैन टॉक, इफ़ इट इज़ लो वी हैव टू वेट अंटिल दैट कम्युनिकेशन स्टॉप्स, ठीक है। एडवांटेजेस हमारे पास इस कम्युनिकेशन के क्या हैं कि इट यूजेस ओनली 2 वायर्स, आप देख चुके हैं। सपोर्ट मल्टीपल मास्टर्स मल्टीपल स्लेव, जो कि एसपीआई में पॉसिबिलिटी नहीं थी। एसी के एनएसी के बिट्स हमें कंफर्मेशन हर स्टेप पे दे रही होती है कि आपका डेटा ट्रांसफ़र सक्सेसफुली हो गया है कि नहीं हुआ। आपका हार्डवेयर वाइज मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, इट इज़ वेरी लेस कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। एंड इट्स अ वेल नोन एंड वाइडली यूज प्रोटोकॉल इन इंडस्ट्रीज, ठीक है। एंड इसके अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो इसका डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ क्वाइट स्लोअर देन एसपीआई, बिकॉज आपके सामने जो है वो ये हर एक को अपना एड्रेस फ्रेम भेज रहा है, हर कोई अपने आप को चेक कर रहे हैं। एसपीआई में हम डायरेक्ट टारगेट करते हैं एंड वी टॉक टू द डायरेक्टली टू द स्लेव, ठीक है, रिस्पेक्टिव स्लेव। तो इसका डेटा ट्रांसफर रेट इज स्लोअर और साइज ऑफ द डेटा फ्रेम जो हमारे पास है वो भी आपका फिक्स्ड है टू द 8 बिट्स, ठीक है। आपने देखा है कि हम 8 बिट्स से ज़्यादा हम मल्टीपल फ्रेम्स भेज सकते हैं, बट एट अ टाइम आप 8 बिट्स से ज़्यादा नहीं एक फ्रेम भेज सकते। डेटा साइज ऑफ द डेटा फ्रेम हैज़ बीन फिक्स्ड हियर, ठीक है। ये बातें हो गई सारी आई टू सी की बेसिक्स, हाउ इट वर्क्स, कैसे ये काम करता है। अब हम चलते हैं कि हम इसको आर्डिनो बोर्ड में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सामने जो आर्डिनो बोर्ड में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ कमांड्स हैं, पहले तो इन कमांड्स को बाद में देखेंगे। सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एक लाइब्रेरी है विच इज़ कॉल्ड वायर डॉट एच, ठीक है। ये आपकी एक आदत लाइब्रेरी है जो आपने हमेशा इंक्लूड करनी है व्हेन यू वांट टू परफॉर्म आई टू सी कम्युनिकेशन। जब कभी भी आपको आई टू सी कम्युनिकेशन करनी है आपको वायर डॉट एच की लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, हैश इंक्लूड वायर डॉट एच, ये ज़रूर लिखना है, पहला काम। सेकेंड थिंग इज़ कि आपने जब आपके जो आर्डिनो बोर्ड्स हैं, दिस इज़ योर वन आर्डिनो बोर्ड, दिस इज़ अनदर आर्डिनो बोर्ड, अगर मैं इन दोनों को मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट करना चाहती हूँ तो एनालॉग चैनल पे जो इसका A4 है, A4 पिन है, और दूसरी हमारे पास है A5 पिन, और इसकी भी A4 पिन है, एंड वी हैव एन A5 पिन। आपने हमेशा याद रखना है कि इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू आर्डिनो बोर्ड्स इन I2C कम्युनिकेशन मैनर, तो आपने उसको जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेंज द कलर, आपने A4 की लाइन को कनेक्ट करना है A4 की लाइन से दूसरे आर्डिनो बोर्ड की, एनालॉग चैनल का A4 को दूसरे आर्डिनो बोर्ड के एनालॉग चैनल के A4 से कनेक्ट करना है, एंड यू हैव टू कनेक्ट A5 विद द A5, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि आपने A4 को A4 से कनेक्ट करना है, A5 को A5 से कनेक्ट करना है। अब जैसा कि आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जो I2C कम्युनिकेशन है इट्स अ 2 वायर प्रोटोकॉल। 2 वायर प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? 2 वायर प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि इसमें एक अदद A4 की वायर हो, एक अदद जो है वो SCL की SDA की होगी वायर, और एक SCL की वायर होगी, ऐसा ही है। एक इसमें सीरियल क्लॉक की वायर होगी और इसमें एक आपके पास
एक सीरियल डाटा की वायर होगी. सो दीज टू लाइंस जो मैंने बनाई है यहाँ पे, एक ये लाइन बनाई है और एक ये लाइन बनाई है, दीज टू आर दीज वायर्स SDA एंड SCL के. ठीक है. A4 जो होता है वो SDA है एंड A5 का जो चैनल है इट वर्क्स ऑल्सो एज अ सीरियल क्लॉक. जब कभी भी आप इन दोनों को A4 और A4 को जो है कनेक्ट करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका SDA पिन इसकी SDA पिन के साथ कनेक्ट हो गई है. और जब कभी भी आप A5 को A5 से कनेक्ट करेंगे दैट मीन्स इसका मतलब है SCLK की क्लॉक, दोनों की क्लॉक आपस में कनेक्ट हो गई है, दोनों सिंक्रोनाइज मोड में आ चुके हैं. ठीक है. और अब प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको wire.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी. मैंने अभी तक 3 बातें की हैं. पहली बात मैंने ये की कि आर्डिनो बोर्ड में I2C कम्युनिकेशन इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉर प्रोग्रामिंग आपको wire.h की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ेगी. नंबर सेकेंड थिंग इज आपको A4 को A4 से कनेक्ट करना होगा एंड A5 को नंबर थर्ड इज A5 से कनेक्ट करना होगा. दीज आर द टू वायर्स इन विच A4 इज द SDA पिन एंड A5 इज द SCLK पिन, यानी कि सीरियल क्लॉक की पिन है. ठीक है. ये मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपने इमेजिन किया, ये होती ही है. ये कभी अब अगर आर्डिनो बोर्ड के अंदर आप उसकी डेटा शीट देखें तो वो आपसे कहेगा कि A4 एंड A5 आर द SDA एंड SCLK पिन्स. ठीक है. तो आपने ये बात याद रखनी है कि आप डेटा की पिन को डेटा की पिन से कनेक्ट करेंगे. हेयर डेटा इज कनेक्टेड टू दिस डेटा एंड क्लॉक की पिन को, दोनों की क्लॉक को आपस में कनेक्ट करेंगे. और बिकॉज ऑफ द अच्छी ट्रांसमिशन करने के लिए हम दोनों की जो ग्राउंड्स हैं उनको भी कॉमन कर देंगे. ठीक है. कि दोनों बोर्ड्स की ग्राउंड्स भी कॉमन हो जाएंगे. दिस दिस होल थिंग्स, ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें एक्सप्लेन की हैं, ग्राउंड कॉमन कर दिया, A4 को A4 से कनेक्ट कर दिया, A5 को A5 से कनेक्ट कर दिया एंड आपने प्रोग्रामिंग करते वक्त wire.h की लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी. नाउ यू आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अ I2C कम्युनिकेशन यूजिंग आर्डिनो. ये 3 से 4 काम करने के बाद आप इस काबिल होंगे. ये नहीं करिए, ये नहीं समझिएगा कि आप चाहें तो A4 को क्लॉक यूज़ कर लें, A5 को डाटा. नहीं, they are fixed. A4 is used for data, S5 is used for clock. आपने सिंपल अब प्रोग्रामिंग करनी है ये दो कनेक्शंस वायर्स से करने के बाद. these two will be done by you by using wires. ठीक है. आगे अगर हम देखते हैं तो अब हमारे पास कुछ कमांड्स हैं जो कि हम स्टडी कर रहे हैं कि कैसे हम आर्डिनो बोर्ड में ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से. सबसे पहला आपने लाइब्रेरी को इंक्लूड करने के बाद लिखना है wire.begin. मैं आपको कमांड्स ये 6 या 7 कमांड्स हैं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है. फिर हम इसका प्रोग्राम भी अपने उसी ऑनलाइन सिमुलेटर में बनाएंगे और इन्हीं कमांड्स को इस्तेमाल करेंगे. मैं डायरेक्टली प्रोग्राम में कमांड्स नहीं यूज़ करी बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आप कहेंगे कि ये चीज़ें कहाँ से आ गई हैं, ये हमें समझ में नहीं आ रहा. तो पहले हम कमांड्स को थोड़ा सा देख लेते हैं कि कमांड्स का पर्पस क्या है, कैसे इस्तेमाल होती हैं, फिर वी विल गोइंग टू राइट द कोड. ठीक है. द यूज बेसिकली क्या है wire.begin का. दिस लाइब्रेरी इज़ यूज फॉर मेकिंग कम्युनिकेशन विद I2C डिवाइसेस. This initiate the wire library and join the I2C bus as a master of slave. जब आपने ये लाइब्रेरी ऊपर लिखी है और नीचे आप सेटअप में जहाँ पे आप लिखते हैं serial डॉट बिगिन बॉड रेट सेट करते हैं या जहाँ पे आप लिखते हैं पिन मोड मैंने इसका इनपुट और आउटपुट सेट किया, उस सेटअप में जब आप वायर डॉट बिगिन लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप एक I2C कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाहते हैं बिटवीन अ मास्टर एंड स्लेव. आप ये चाहते हैं कि अब कुछ चीज़ मैं I2C कम्युनिकेशन में ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, आप वो बस ज्वाइन करने लगे हैं. अभी ये बात नहीं हुई कि मास्टर की तरह ज्वाइन कर रहे हैं कि स्लेव की तरह ज्वाइन कर रहे हैं. अभी सिर्फ इतनी बात हो रही है कि हम ज्वाइन करेंगे, हमने ज्वाइन किया है. ठीक है. इसके अंदर ब्रैकेट में एक एड्रेस लिखा हुआ है. एड्रेस क्या है? द 7-bit स्लेव एड्रेस इज ऑप्शनल एंड इफ द एड्रेस इज नॉट स्पेसिफाइड इट ज्वाइंस द बस एज अ मास्टर. अब यहाँ पे बात बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है. अगर आप ये चाहते हैं कि मैं एज अ मास्टर ज्वाइन करूँ I2C अपनी I2C की बस को, तो इसका मतलब क्या है कि मैं लिखूंगी wire.begin एंड 2 ब्रैकेट, दैट्स इट. बट अगर मैं एज अ स्लेव ज्वाइन करना चाहती हूँ तो हर हाल में मुझे स्लेव का 7-bit का एड्रेस यहाँ लिखना पड़ेगा. ये बात आपने याद रखनी है. 7-bit का एड्रेस का मतलब ये है कि आप जो है वो 0 से लेके 127 तक का नंबर कोई भी इसमें लिख सकते हैं, तो इट विल बी द 7-bit एड्रेस आपका बन जाएगा. इससे बियॉन्ड आप जाएंगे तो वो 7-bit से ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब है दैट इज़ नॉट पॉसिबल. तो कोई भी 7-bit का एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हैं, तो आप एज अ स्लेव ज्वाइन करेंगे. अब मैंने बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ बस. देखिए हो क्या रहा है, आपके पास एक अदद ये मास्टर है. अभी हम सिंपल कॉन्फ़िगरेशन एज्यूम कर रहे हैं. ये आपकी लंबी सी बस है, यहाँ पे एक स्लेव है, ये दूसरा स्लेव है. आप ये चाह रहे हैं कि लेट सपोज आप ये हैं, यू आर दिस. आप चाहते हैं कि मैं एज अ स्लेव ज्वाइन करूँ, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे वायर डॉट बिगिन, सॉरी फॉर द बैड राइटिंग,
and in the bracket you will write for example 8 or 9 and semicolon. तो इसका मतलब है आप एज अ स्लेव ज्वाइन कर रहे हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप एज अ मास्टर ज्वाइन करें तो आप क्या लिखेंगे, वायर डॉट बिगिन and you will just write the two brackets. Here the address is optional, आपको नहीं लिखना, that means it's a master, but slave में अगर आपने ये मिस किया तो आपका एरर आएगा. ठीक है, let's move towards the next command. आई थिंक ये बहुत क्लियर हो गई है. वायर डॉट रीड, दिस फंक्शन इज यूज टू रीड अ बाइट. ऑब्वियसली ये रीड है तो ये रीड अ बाइट करने के लिए इस्तेमाल होता है. दैट वाज रिसीव्ड फ्रॉम मास्टर और स्लेव डिवाइस, क्योंकि मैंने आपको ये बोला है कि यहाँ पे हम मास्टर स्लेव कोई भी एक दूसरे से रिसीव एंड ट्रांसमिट कर सकते हैं. तो कोई भी बाइट रीड करने के लिए चाहे वो रिसीव हुई है मास्टर से या स्लेव से, यानी कि मैं अगर आपको भेज रही हूँ, मुझसे आप डेटा रीड करना चाह रहे हैं तो यू विल राइट वायर डॉट रीड. Either that was transmitted from a slave device or to a master device after a call to request from, or was transmitted from master to slave. इस वाले फंक्शन को अभी छोड़ दीजिए. आपने कहीं कभी भी I2C कम्युनिकेशन में कुछ रीड करना है, चाहे वो मास्टर ने भेजा है और आप स्लेव हैं और आप रीड करना चाहते हैं, या स्लेव ने भेजा है और आप मास्टर हैं, आप रीड करना चाहते हैं. यानी कि अगर आप मास्टर हैं और स्लेव ने कुछ भेजा है और आप रीड करना चाहते हैं तब भी आप यही कमांड इस्तेमाल करेंगे, या आप अगर स्लेव हैं और मास्टर ने आपको कुछ भेजा है तब भी आप यही कमांड यूज करेंगे, वायर डॉट रीड. ठीक है. वायर डॉट राइट, दिस फंक्शन इज यूज टू राइट डेटा टू अ स्लेव और मास्टर डिवाइस. आपने कुछ लिखवाना है तो आप क्या यूज करेंगे, वायर डॉट राइट. अब स्लेव टू मास्टर, अब स्लेव अगर मास्टर को कुछ लिखवाना चाहता है, ठीक है, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अगर स्लेव, लेट मी चेंज द कलर, अगर स्लेव मास्टर को कुछ लिखवाना चाहता है, स्लेव राइट्स डेटा टू अ मास्टर व्हेन वायर डॉट रिक्वेस्ट फॉर्म इज यूज्ड इन मास्टर. ठीक है, अगर स्लेव कुछ मास्टर को लिखवाना चाहता है तो सबसे पहले मास्टर के कोड में आपने ये लाजमी लिखना है, वायर डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम. बिकॉज अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो इसका मतलब है कि मास्टर ने कुछ रिक्वेस्ट नहीं की थी, स्लेव एम ही उसको भेज रहा है. ठीक है, तो हम जब ट्रांसमिट, अभी आप ये कोड देखोगे तो आपको और चीज़ें क्लियर होंगी. अभी सिर्फ बेसिक समझ लीजिए कि वायर डॉट राइट दोनों लोग आपस में बात करने के लिए लिखेंगे, बात करने के लिए इस्तेमाल करेंगे. बट अगर आप स्लेव मास्टर से बात करना चाह रहे हैं, स्लेव आपको पता है नीचे है, मास्टर ऊपर होता है, तो मास्टर की तरफ से एक रिक्वेस्ट आनी चाहिए. ठीक है, तो इसलिए जब कभी भी आप स्लेव से मास्टर को डाटा भेज रहे हैं तो आपने लिखना है वायर डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम का फंक्शन ज़रूर बनाना है मास्टर के अंदर. ठीक है, मास्टर टू स्लेव. अच्छा, इसको, इस टॉपिक को प्लीज़ इस तरह से मत अंडरस्टैंड करिएगा कि मैं आपको ये लंबी चौड़ी कोड लिखने के लिए दे दूंगी पेपर में या एग्जाम में या आपके मिड टर्म में या किसी क्विज में, या मैं आपको सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ. अभी हम इसकी आर्डिनो की एक ऑनलाइन स्टिमुलेटर में एग्जाम्पल भी करेंगे बहुत डिटेल में. ठीक है, आपको उधर भी आइडिया हो जाएगा कि जो है हम किस तरीके से इस काम होगा, उसमें और मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा. लेकिन मैं सिर्फ इसलिए समझा रही हूँ कि वो हजरात जो इंटरेस्टेड हैं इस फील्ड में काम करने के लिए, जिनका इंटरेस्ट है कि मैं देखूँ हमने कैसे कम्युनिकेशन करनी है, मैं उनके लिए समझा रही हूँ. हम जो प्रोग्राम बनाएंगे उसमें इनमें से सारी कमांड्स तो वैसे भी यूज़ नहीं करेंगे. हम सिर्फ बेसिक सा एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, एक एवरेज, ताकि हर क्लास का बच्चा समझ सके. वो बच्चे जो चाहते हैं कि नहीं यार हम और अंदर भी घुसना चाहते हैं कैसे काम हो रहा है, हम अपनी तरफ से भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, मैं उनके लिए सारी कमांड्स डिस्कस कर रही हूँ. ठीक है, तो अगर आपको कोई इसमें से कोई कमांड ऐसा लगता है कि मिस ये क्या पूछेंगी कैसे होगा, तो आप सिर्फ जनरली समझ लीजिए, आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है. देन वी हैव अ मास्टर टू स्लेव. मास्टर टू स्लेव क्या है, फॉर ट्रांसमिशन फ्रॉम अ मास्टर टू स्लेव डिवाइस, वायर डॉट राइट इज यूज इन बिटवीन कॉल्स टू वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन एंड वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन. अगर मास्टर कुछ स्लेव को भेज रहा है तो मास्टर को पहले एक ट्रांसमिशन बिगिन करनी पड़ेगी, वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन, और आखिर में लिखना होगा वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन, यानी कि ट्रांसमिशन खत्म हो गई है, और बीच में ये कहीं लिखा जाएगा वायर डॉट राइट. ठीक है, तो अगर मास्टर कहीं भेज रहा है तो मास्टर को प्रोटोकॉल फॉलो करना है, पहले लिखना है बिगिन करो, फिर ये वायर डॉट राइट की कमांड लिखना है, और फिर इसने एंड ट्रांसमिशन करनी है. ठीक है, लेकिन अगर स्लेव भेज रहा है तो उसके स्लेव को ये सब कुछ लिखने की कहानियां ज़रूरत नहीं है, बिगिन एंड. वो क्या करेगा, डायरेक्टली वो सिंपली आपके पास जो है रिक्वेस्ट फ्रॉम अगर मास्टर ने लिखा हुआ है तो वो डायरेक्टली डाटा अपना भेज देगा. ठीक है, ये सब फंक्शंस हैं, वायर डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम, वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन, एंड ट्रांसमिशन, ये आपको फंक्शंस बनाने नहीं होंगे, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं. ठीक है, उसके बाद है वायर डॉट राइट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई अंदर वैल्यू लिख दें, जो वो वैल्यू जो है जो भी भेज रहा होगा वो चली जाएगी.
आप चाहें तो यहाँ कोई स्ट्रिंग लिख दें तो वो वाला स्ट्रिंग चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। आप चाहें तो कोई डेटा, कोई एरे ऑफ डेटा लिख दें और उसकी बराबर में उसका लेंथ लिख दें कि इसकी ये लेंथ है। आप ये 3 तरीक़ों से डेटा लिखवा सकते हैं स्लेव पे या मास्टर पे, ठीक है। दोनों लोग डेटा लिखवा सकते हैं यूजिंग दिस कमांड वायर डॉट राइट। लिखवाने के तरीके क्या हैं? आप वैल्यू भी लिख सकते हैं, स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप एज अ मास्टर हैं और लिखवाना चाहते हैं तो आपको बिगिन और एंड की कमांड्स शुरू में लिखनी पड़ेंगी इस फंक्शन को इस्तेमाल करने से पहले, ठीक है। और अगर आप स्लेव हैं और आप कुछ भिजवाना चाहते हैं तो आप सिर्फ मास्टर में ये वाला फंक्शन लिखेंगे और आप डायरेक्टली डाटा भेज सकते हैं। फिर है वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन एड्रेस। अब ये अगेन आपके पास है, दिस फंक्शन इज यूज टू बिगिन अ ट्रांसमिशन टू द I2C डिवाइस विद द गिवन स्लेव एड्रेस। जो भी एड्रेस होगा उस पर वो ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाएगी। सब्सिक्वेंटली बिल्ड क्यू ऑफ बाइट्स फॉर ट्रांसमिशन विद द राइट फंक्शन एंड देन ट्रांसमिट देम बाय कॉलिंग एंड ट्रांसमिशन। 7 बिट ऑफ एड्रेस ऑफ द डिवाइस इज ट्रांसमिटेड। सिंपल ये, जब भी आपने अपनी ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी है तो मास्टर लिखेगा वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन और वो अपना स्टार्ट कर देगा एंड जो भी एड्रेस होगा जिस स्लेव से वो बात कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। सिंपल इसमें ये वाली बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह से है आखिर में, जब वो अपनी पूरी ट्रांसमिशन कंप्लीट कर लेगा तो वो आखिर में लिखेगा वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन। दिस फंक्शन इज यूज टू एंड अ ट्रांसमिशन टू अ स्लेव डिवाइस दैट वाज बिगिन विद बिगिन ट्रांसमिशन। और जो भी आपकी चीज़ें हैं वो ट्रांसफर उसके बाद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, जब मास्टर कुछ भेजेगा तो वो वायर डॉट बिगिन ट्रांसमिशन लिखेगा और इसके बाद वो वायर डॉट राइट की फंक्शन से कोई भी बातें लिखेगा कि मैंने आपको बताया है कि वो प्रोटोकॉल फॉलो करेगा। और जब वो ट्रांसमिशन ख़त्म कर देगा तो वो वायर डॉट एंड ट्रांसमिशन करके बात ख़त्म कर देगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं वायर ऑन रिक्वेस्ट। This function gets called when a master requests data using wire.request from the slave device. Hence we can include wire.write function to set data to the master. अब ये जैसे कि मैंने आपको भी पीछे एक्सप्लेन किया था, मैंने आपको 2 बातें एक्सप्लेन की थी कि wire.write का फंक्शन में 2 बातें थी। अगर मास्टर कोई बात करना चाह रहा है, मास्टर कोई चीज़ जो है क्या कहते हैं जो है वो ट्रांसफ़र करना चाह रहा है स्लेव को, तो उसको अपनी बात वायर डॉट राइट इन दोनों के दरमियान में लिखनी होगी। पहले ट्रांसमिशन स्टार्ट करनी होगी, उस स्लेव का एड्रेस लिखना होगा, वायर डॉट राइट लिखना होगा और आखिर में एंड ट्रांसमिशन करना होगा। ये इसका प्रोटोकॉल है मास्टर का। लेकिन अगर स्लेव ये काम करना, स्लेव कुछ भेजना चाह रहा है, ठीक है, स्लेव राइट करवाना चाह रहा है, तो आपको मैंने क्या बोला है कि आप वायर डॉट ऑन रिक्वेस्ट की कमांड लिखेंगे मास्टर के प्रोग्राम में, ठीक है। वायर डॉट ऑन रिक्वेस्ट की कमांड कहाँ लिखोगे? मास्टर के टाइम में। जब ये वहाँ लिखा हुआ होगा तो स्लेव डायरेक्टली वायर डॉट राइट की कमांड यूज़ करके अपना डाटा ट्रांसफ़र कर देगा। दिस फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन अ मास्टर रिक्वेस्ट डाटा यूजिंग वायर डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम द स्लेव डिवाइस। यानी कि अगर मास्टर के प्रोग्राम में ये चीज़ लिखी हुई है और वो चाहता है स्लेव से कुछ डाटा रिसीव करना, तो वो ये बात सबसे पहले लिखेगा। इसके बाद क्या है, हेयर वी कैन इंक्लूड वायर डॉट राइट फंक्शन टू सेंड डाटा टू द मास्टर। अब आप स्लेव में ये वाला फंक्शन लिखेंगे और डाटा ट्रांसफ़र कर देंगे मास्टर को, ठीक है। तो वायर डॉट ऑन रिक्वेस्ट हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अब किसी के जहन में हो सकता है ये सवाल भी आ रहा हो कि आप कह रही हैं कि मास्टर में लिखेंगे स्लेव में लिखेंगे। देखिए, आप जब अपने आर्डिनो बोर्ड्स, आपके पास लैपटॉप में 2 पोर्ट्स हैं USB पोर्ट्स, आप दोनों पोर्ट्स पे 2 आर्डिनो बोर्ड कनेक्ट करेंगे, ठीक है। आप 2 आर्डिनो की IDE खोलेंगे, यानी कि आर्डिनो की जहाँ प्रोग्रामिंग होती है उस तरह की 2 विंडोज़ खोलेंगे। एक विंडो में मास्टर प्रोग्राम हो रहा होगा, उसका पोर्ट सेलेक्ट करके उसको प्रोग्राम कर रहे होंगे। एक प्रोग्राम दूसरी विंडो के अंदर स्लेव का पोर्ट सेलेक्ट करके स्लेव को प्रोग्राम कर रहे होंगे। तो जब मैं कह रही हूँ कि मैं आप वायर ऑन रिक्वेस्ट मास्टर में लिखें, तो आप मास्टर वाले पोर्ट पे जाके ये वहाँ लिखेंगे और स्लेव वाले पोर्ट पे जाके वायर डॉट राइट की कमांड लिखेंगे, ठीक है। तो ताकि ये जो है वो ट्रांसमिशन स्लेव से मास्टर की तरफ हो सके। ये कहाँ लिखा जाएगा? वायर ऑन रिक्वेस्ट, ये मास्टर के कोड में लिखा जाएगा। जहाँ मास्टर कनेक्टेड है जिस पोर्ट से, उसकी ID में जहाँ आपने सेलेक्ट किया होगा वहाँ आप वायर डॉट ऑन रिक्वेस्ट लिखेंगे। और जहाँ आपके पास स्लेव की पोर्ट होगी, स्लेव का जो प्रोग्राम विंडो खुली हुई होगी, वहाँ पे आप वायर डॉट राइट की कमांड लिखेंगे, सही है। फिर नेक्स्ट कमांड है वायर डॉट ऑन रिसीव। दिस फंक्शन गेट्स कॉल्ड व्हेन अ स्लेव डिवाइस रिसीव्स अ डाटा फ्रॉम अ मास्टर। जब भी स्लेव कुछ मास्टर से डाटा रिसीव करेगा तो वायर डॉट ऑन रिसीव के फंक्शन में रिसीव होगा। हेयर वी कैन इंक्लूड द वायर डॉट रीड फंक्शन, यानी कि ऑब्वियसली जो भी रिसीव है उसको आप रीड करना चाहते हैं, टू रीड द डाटा सेंड फ्रॉम द मास्टर, ठीक है।
आखिरी है वायर डॉट रिक्वेस्ट फ्रॉम एड्रेस एंड क्वांटिटी, दिस फंक्शन इज यूज्ड इन द मास्टर टू रिक्वेस्ट बाइट्स फ्रॉम द स्लेव डिवाइस, कि आपने मुझसे कितनी कितनी बाइट्स में बातें की हैं। द फंक्शन वायर डॉट रीड इज यूज टू रीड द डेटा सेंड फ्रॉम द स्लेव डिवाइस। देखिए वायर डॉट रीड जो होता है वो तो सिर्फ डेटा आपका रिसीव कर लेता है, ठीक है। अब अगर मास्टर ये चाहता है कि वो ये भी देखे कितनी बाइट्स उसके पास आई हैं फ्रॉम द स्लेव डिवाइस, तो वो ये वाला फॉर्म लिखेगा, जो एड्रेस है स्लेव का वो यहाँ लिखा जाएगा, और जितनी बाइट्स उसको चाहिए वो यहाँ लिखी जाएंगी, ठीक है। तो दीज आर द सम ऑफ द कमांड्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं फॉर योर आर्डिनो बोर्ड, ठीक है, फॉर योर I2C कम्युनिकेशन इन आर्डिनो। इनमें से मैंने आपको ये कमांड्स सिखाई हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने वीक के लेक्चर में ये सारी की सारी कमांड्स में से 50-70% कमांड्स यूज़ करेंगे, बाकायदा इसको आर्डिनो के उस ऑनलाइन सिमुलेटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देखेंगे कि हम किस तरीके से दो आर्डिनो बोर्ड्स के दरमियान I2C कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनमें से कोई कमांड आपको नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है कि ये बहुत ऊपर से गुजर गई और नहीं समझ में आ रही, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मुझे अपने ऑनलाइन सेशन में पूछ लीजिए या व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए। और सेकंड काम आप मेरे से ये कर सकते हो कि आप जो है वो कोशिश करिए, मैं ये नहीं कह रही कंफर्म, कोशिश करिए कि कोई एक ऑनलाइन प्रोग्राम देखिए आर्डिनो बोर्ड पे, या आपके पास अगर बोर्ड है तो कोई प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए। तो आप एक दफ़ा जब इसे यूज़ कर लेंगे इन कमांड्स को, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। दिस इज़ इनफ फॉर दिस वीक, ऑल अबाउट I2C कम्युनिकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकली ऑन योर ऑनलाइन सिमुलेटर, एंड दैट्स इट फॉर ओके। सो अब आप लोग जो हैं वो इसको देखिए, समझिए, और कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क मी इन योर ऑनलाइन सेशंस एंड ऑन द व्हाट्सएप एज वेल। Okay, that's it for today. Thank you very much, guys. Allah Hafiz.